हाय। देर इज़ अ सर्जरी जहाँ मार्जिन ऑफ एरर मिलीमीटर्स में गिना जाता है, वेयर इवन द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव इवन बाय 1 मिलीमीटर कैन मीन पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस और डेथ। जहाँ आपका ब्रेन, आपकी स्पाइन एंड द डिफरेंस बिटवीन अ लाइफ फुल्ली लिव्ड और ऑल्टर्ड डिपेंड्स on one single decision of the surgeon. My guest today has lived 2 decades into this specialty. Dr. Vivek Agrawal, founder and director of NHRCC, धंतोली में न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल है. He has also trained a lot of young doctors and then when he could have gone anywhere, उन्होंने नागपुर आके अपना establish किया. Let's hear his story in this podcast today. हाय सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला है आज संडे को. थैंक्स समीर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. एंड ये बहुत बड़ी बात है कि आपने आज भी सुबह एक सर्जरी करके आप इसके लिए टाइम निकाल रहे हो. दैट्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे ना सर शुरू करना है कि शुरुआत कहाँ से हुई, एमबीबीएस कैसा था? यूजुअली एमबीबीएस के टाइम पे एक इंसान स्पेशलिटी डिसाइड कर लेता है कि मैं लाइफ में ये सब करूँगा. आपको ऐसा कब लगा कि मैं सर्जरी करके न्यूरो सर्जरी करूँगा करके? समीर, जब एमबीबीएस किया तो ऑब्वियसली ये तो दिमाग में था ही कि कुछ करना है. स्पेशलिटी आई वॉज नॉट वेरी श्योर. आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. मैं उस समय एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा था एंड आई वॉन्ट टू डू, बट इतना क्लियर था कि आई वॉन्ट टू डू सम सर्जिकल वर्क. बिकॉज मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता था कि आई एम गुड इन आई वॉज गुड इन पेंटिंग एंड माई स्किल वर्क्स आर गुड. आई थॉट कि सर्जरी वुड बी अ बेटर ऑप्शन रादर देन गोइंग फॉर मेडिसिन. राइट. Yeah, super specialty it came later on when I started doing general surgery. बराबर. Yeah. तो जनरल सर्जरी में आपने सोचा कि एमसीएच न्यूरो करना है? Yeah, definitely. पहले I was more towards urology, but then I saw the pros and cons of every branch and everything. जी. Then I thought कि neurosurgery is it's a challenging branch and you can start early with neurosurgery. Right. That was in my mind. And second thing, when I was posted in neurosurgery department, at that time things clicked very well. बराबर. I thought कि this is the branch I want to pursue. तो फिर आपने अहमदाबाद में भी ट्रेनिंग करना, जहाँ 200 केसेस अ मंथ और BJ Medical Ahmedabad से I did my neurosurgery. जी. Yeah, it is the heaviest center Right. in the Western India. Okay. It was the only center at that time. Maybe now new centers may be there. बिल्कुल. But that was the only center which was draining the patient from not from Ahmedabad, not from Gujarat, but from Rajasthan, MP, and some part of Maharashtra also. Oh, क्या बात है. Yeah. बहुत So it बढ़िया. was a big center, and we were doing nearly about 200, maybe more than 200 cases. आपने फिर न्यूरो एंडोस्कोपी में भी फेलोशिप की? Yeah. उसका क्या थिंकिंग प्रोसेस था तब? Neuroendoscopy, because as the time changes, we have to go minimally invasive now. So I thought कि we should have some experience of neuroendoscopy also. So I did a fellowship. It was a short fellowship. Did fellowship in neuroendoscopy as well as spine endoscopy. जी. Yeah. तो आपने ओवर सो मेनी इयर्स यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ कि वो छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम्स रिकग्नाइज करना जो लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं. Definitely. एंड यूजुअली बाय द टाइम पीपल लैंड टू अ न्यूरोलॉजिस्ट और अ न्यूरोसर्जन, वो काफ़ी लेट हो जाता है. लेट हो जाता है. सो व्हाट आर दोस अर्ली सिम्टम्स जो लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए? If you see brain symptoms, जी. तो brain symptoms में जो है, if you have persistent headache, particularly associated with vomiting, if there is mild change in voice or slurring of speech is there, or there is subtle change in limb power, so you should always you have to be very cautious about these symptoms. जी. As soon as you notice the symptoms, you should rush to the neurologist or a neurosurgeon. ओके. Similarly, in spine, if you have persistent backache, if it is not going with medication, rest, rather it is radiating to the limbs, then if you have some weakness in the limb, जी. mild weakness, difficulty in walking, if there is urinary symptoms are there, then definitely you should rush to a neurosurgeon. Rather than going to the neurologist, I would suggest you should rush to a neurosurgeon. बराबर. Yeah. थंडर क्लैप हेडेक्स, Yeah. इसके बारे में बताइए. Thunderclap headache, it is, you can say it is the worst headache any person can have. It is like अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास में आए थे. शी सेड कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब हेडेक, मरने जैसा हेडेक. तो ये बेसिकली सबरेक्नाइड हेमरेज होता है ब्रेन में. सबरेक्नाइड हेमरेज इज़ अ हेमरेज इनसाइड द एरेक्नाइड मेम्ब्रेन. बराबर. या
So it happens because of the ruptured aneurysms in the brain. जी. So this leads to severe headache. Patient may become unconscious after some time. जी. The patient starts vomiting repeatedly. So this is called thunderclap headache. So it's like a thunder. बराबर. Yeah. तो उस समय इज देयर एनी पर्टिकुलर रेमेडी करनी चाहिए कि तुरंत कोई रेमेडी नहीं करना चाहिए. स्ट्रेट फॉरवर्ड यू रश टू द हॉस्पिटल, गेट एडमिटेड एंड गेट इन्वेस्टिगेटेड एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट. अच्छा. और एक सर रूल स्ट्रोक का एक फास्ट वाला रूल होता है, या उसके बारे में भी एनलाइटन प्लीज. फास्ट इज बेसिकली फेशियल वीकनेस. जी. A is for arm weakness, जी. arm drooling. जी. S is for speech, and T is the time. Time is बिल्कुल. brain. So fast is facial weakness is there. If you have noticing some kind of facial weakness, जी. if there is change in the voice, weakness in the arm, if you notice some speech changes. So if you noticing all these things in you or someone in your family member, then immediately rush to the hospital, because most likely it is a stroke which can be treated if you reach the hospital within 3 hours. बराबर. इसमें भी ड्रूपिंग ऑफ फेस और वो सब भी Yeah. आता ही है. Drooping in face. बराबर. Yeah. और स्पाइन कंडीशंस के लिए क्या क्या मार्कर्स देखने चाहिए इंसान ने? Spine में अगर if you talk about lumbar spine, then if the patient is having backache is okay. जी. Majority of the backaches are mechanical backaches, but sometimes backache is because of disc prolapse. Because of disc prolapse, if patient is having radiating pain in the limb, if he is experiencing weakness in the limb, बराबर. particularly the toes, foot drop is there, or not able to wear the chappals, जी. or if he is experiencing slipping of chappal while बराबर. walking, then immediately he should rush to the hospital, because it's a sign of it's a red flag sign of lumbar disc prolapse, and he should get investigated immediately for these things. थैंक यू सो मच. Yeah. आपने इतना जब पढ़ाई की, इतने सालों बाद फेलोशिप्स किए, टीचिंग में कहाँ से अट्रैक्शन आ गया फिर आपको? टीचिंग में अट्रैक्शन पहले से ही था, जी. बिकॉज टीचिंग इज समथिंग लाइक you always means I think most of the medicos they like to teach, or they wants to be in institute only. So similar way I was in institute for some time. अच्छा लगता था. एकेडमिक्स रहता है तो आप अपने आपकी जो नॉलेज है वो रेगुलरली ब्रशअप होती रहती है. यू रिमेन्स अपडेटेड, और you are surrounded with good people. So that was the motto. But after some time I realized कि I should move on. टीचिंग का आपको व्हेन यू लुक बैक, तो एकेडेमिया का जो एक डार्क फेज भी होता है, वो आपको क्या लग रहा था? और डार्क फेज मुझे ये लग रहा था कि पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट, या सो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि व्हेन आई वाज अटैच्ड विद सम इंस्टीट्यूट हियर आल्सो, सो आई थॉट कि मेरा अभी पर्सनल प्रोग्रेस इसमें नहीं है, प्रोफेशनल प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है, बिकॉज आई वर स्टक बिकॉज लॉट ऑफ सीनियर्स वेयर देयर वेयर अहेड ऑफ मी इन द पोस्ट. So I thought it better to move on rather than remain stuck here, because I want my independent OT. I want my independent decision making. So I don't want to be dependent on someone to make a decision, or someone should not guide me कि what surgery you should do and what. So I thought कि it's better to move on. खुद का बॉस बनने का समय आ गया. Yeah, exactly. Exactly. एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इन द न्यूरोसर्जरी सेटअप वर्सेस अ प्राइवेट सेटअप में, in terms of surgery, क्या फ़र्क देखा आपने? There is hell lot of differences there. In surgery, government setup, your responsibilities are far less. You can operate the patient and you can leave the patient. Resident will look after the patient. Even the patient's relatives, they do not bother about the results. They even don't know who is operating their relatives. Yeah. But similarly, in private, the thing is totally different. In private setup, everything, whatever you are doing, you have to inform the relatives. Means minor surgery if you are doing, you have to be responsible for that, and you have to inform the relative about the results, the pros and cons. And in private setup, surgeries are more result oriented. You have to give result. So that makes me happy. When you start delivering results, relatives are happy. So it gradually it gives name also. So True. Yeah. So private setup, obviously it is result oriented. It gives you fame also. So that was the difference I like. अब मैं थोड़ा सा इसमें आर्ग्यू ये करता हूँ कि सर गवर्नमेंट में हमेशा एक जॉब सिक्योरिटी बनी रहती है. गवर्नमेंट सेटिंग में इंस्टीट्यूशन है, आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा कुछ है नहीं. Yeah. वर्सेस प्राइवेट में
एक छोटा सा मिस्टेक भी आपको एक लीगल मैटर में डाल सकता है। यस, ट्रू ट्रू। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड वाली ही बात है। गवर्नमेंट में बहुत सेफ हो आप, प्राइवेट में एवरीथिंग आप ही लायबल हो। तो बहुत डॉक्टर्स ये रिस्क ले सकते हैं, बहुत डॉक्टर्स को शायद रिस्क लेना नहीं पसंद है। तो आपका तब उस समय थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था कि मैं यहाँ से जो शिफ्ट कर रहा हूँ, वो क्या सोच रहे थे आप तब? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि सी मैं थोड़ा पर्सनली बता रहा हूँ कि हाँ, go for it. आई एम अ मारवाड़ी। जी सी, सो I cannot be in a government institute for a long time. जी I always dreamed of having my own hospital. Always dream of having something my own. बराबर। So I was ready to take all these things, all the medical legal cases. I was ready, and I have a backup for all these things. बराबर। I have insurances, personal insurances are there, medical hospital insurances are there. So I'm ready with all these things. But touch wood, till now, as I have been doing practice since last 10 years in Nagpur. जी Not a single case is there. So it is all because you have, it's your counseling part. You have to keep update the patient's relative. You have to keep update the relatives about the condition, about the future prognosis. जी And once you inform everything, I don't think you will can land up with any issues, medical legal issues. बराबर। बहुत लोगों को सर न्यूरो सर्जरी के बारे में ये भी लगता है, एटलीस्ट प्राइवेट साइड में, कि न्यूरो सर्जरी इज़ ओनली फॉर पीपल जो बहुत रिच हैं, अफोर्डिंग है। ये मिसकंसेप्शन क्यों आया लोगों में से? क्या होता है समीर कि पहले न्यूरो सर्जरी वॉज फॉर ओनली फॉर लाइक रिच पीपल, बिकॉज सर्जन्स वेयर वेरी लिमिटेड, सेंटर्स वेयर वेरी लिमिटेड, सी, एंड इवन आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं जी तो आई थिंक नागपुर से भी मैक्सिमम पॉपुलेशन मुंबई जाके ऑपरेट कराता था, है ना। तो वो ऑब्वियसली आप जब मुंबई जा रहे हो तो वहाँ पे उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा आपका, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत लिमिटेड थे, सर्जन्स वेर लिमिटेड थे, तो ऑब्वियसली डिमांड वॉज, sources were limited but demand was high. बराबर। So that was the scenario at that time. जी But the scenario has changed a lot now. Means we have good centers even in Nagpur now, Barabar. in other centers also, and similarly number of doctors has increased. ओके बराबर। हाँ Yeah. तो- So that is the reason now. I would say Affordability बढ़ गई है। affordability. हाँ, secondly चीज patient की affordability बढ़ते जा रही है. Yeah, this is another reason. बराबर। Yeah. So it is now, neurosurgery is now affordable for Barabar. everyone. जब आप NHRCC फाउंड कर रहे थे, Yeah. तो आप क्या गैप दिख रहा था आपको तब उस समय? Yes. That is really a good question. जी मैंने जो डिफरेंस देखा जी वो मुझे ये दिखा नागपुर में पर्टिकुलरली जी कि नागपुर में हर स्टेटा के हॉस्पिटल्स है, फ्रॉम अ वेरी शैबी, sorry to say, हाँ नहीं बराबर। shabby hospitals to a very fantastic hospitals like we have some big corporates in Nagpur. So the link was missing in this case was there was no hospital which was giving you all the services which all these corporate hospitals are giving in a affordable range, you can say, or in a like a I would not say nursing home but kind of nursing home type. So this was I tried to mix these two things. Means my hospital is not a very like a corporate hospital, but it's not a very small hospital like a nursing hospital. जी So I'm giving every services, you name it, I have it. जी Yeah, from the diagnostic, from pathology, from surgery, from ICU, Barabar. from medical management, I'm giving everything. You know, so that this is the lacuna I found in Nagpur. That's why I've started this hospital. So I thought कि it's a good idea to have a small setup but with all the facilities. तो सर लोकेशन आपने क्या सोच के फाइनलाइज किया? लोकेशन ऑब्वियसली मेरे सबसे पहली इच्छा यही थी कि सेंटर इट शुड बी सेंट्रली लोकेटेड, जी क्योंकि न्यूरो सर्जरी ऐसी ब्रांच है और मेरी वाइफ शी इज़ ए क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट, सो ये ऐसी ब्रांच है कि इट इज़ मोस्टली पीपल दे कम फ्रॉम ऑल द साइड्स, बिकॉज टिल टुडे पेरीफेरी में अभी भी उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, अभी भी न्यूरो सर्जरी का भी नहीं है, क्रिटिकल केयर का भी नहीं है. तो आई वांटेड कि जो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं तो दे शुड फाइंड द प्लेस वेरी इजीली फाउंडेबल. सो दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड दिस हॉस्पिटल. पर सर आपको ही पता है कि हम जब आज नागपुर में नया बनाना चाहते हैं तो कंप्लायंस इतने हैं, या फायर सेफ्टी होना चाहिए, Yes. ओसी होना चाहिए, Yes, कितना yes. कितना, तो इस सब में भी आपको इतनी प्राइम लोकेशन में एक बिल्डिंग मिलना इज़ बहुत बड़ी बात हो गई सर. समीर सच बात बताऊँ, मुझे बिल्डिंग मैंने को ऑलमोस्ट मैंने 1 से 1.5 साल ट्राई किया.
मैं बार बार नेगोशिएट किया उनसे. आफ्टर दैट आई फाइनलाइज, मीन्स आई वॉज वेरी कीन टू स्टार्ट द हॉस्पिटल, बट समहाउ थिंग्स वे नॉट गोइंग in my way. So I remain, I was in touch with that guy. 1.5 साल तक मैंने उनसे बात करते रहा, and finally he said okay, let's start. So this is how it started. क्या लगता है सर एक हॉस्पिटल शुरू करने को? आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि Yeah, आप जीरो से जब एक जगह फाइनल करते हो, हॉस्पिटल बनता है, परमिशंस आती हैं, yeah. टीम्स कैसे बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आता है, इसके बारे में थोड़ा सा. See, to start a hospital, I would say कि it's not a big deal. जी. But हॉस्पिटल स्टार्ट करने के पहले यू शुड हैव अ सफिशिएंट बैकअप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, पेशेंट्स. फाइनेंसेस यू कैन अरेंज, आ जाते हैं वो. आ जाते हैं फाइनेंसेस, है ना. बट द थिंग इज यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन ट्रीटिंग द पेशेंट. यू हैव टू स्पेंड ईयर्स बिफोर स्टार्टिंग योर ओन हॉस्पिटल. स्किल डेवलप करना, स्किल डेवलप करना, पेशेंट का बैकअप डेवलप करना, दीज आर मोर चैलेंजिंग रादर देन हैविंग अ हॉस्पिटल. बराबर. Yeah, obviously having a hospital, it's not a joke. You cannot you cannot go and start the hospital. But the most important part was this thing. Then again, finding a location is very important. Location भी मिल गया. Then finding a you should have all the compliances, as you said. Fire का NOC मिलना चाहिए, NMC का NOC मिलना चाहिए. Then ये बहुत सारे होते हैं, मुझे अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बट बहुत सारे NOCs होते हैं जो कि करना पड़ता है, एंड यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम ऑल दिस थिंग्स. सो इट्स अ टफ जॉब टू हैव ऑल दिस थिंग्स, एंड इट ऑल्सो योर लक. यू शुड गेट ऑल दिस थिंग्स इन वन टाइम. मॉड्यूलरिटी भी आ जाती है सर. या तो अप्रॉक्सीमेटली आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि इनपुट फाइनेंसेस में कितना जाता है, Yeah, कितना लगता है एक ओटी बनाने को, आईसीयू का खर्चा. आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इन्वेस्टमेंट हेवी ब्रांचेस होती है. एग्जैक्टली. नहीं, नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है. आई वुड से कि करोड्स में खर्चा लगता है टू हैव अ मॉड्यूलर ओटी, ICU, देन योर सेटअप, देन अपार्ट फ्रॉम दिस देन गैजेट्स आर हैवी. These are, so you have to spend a lot of money in these things, and sometimes it goes like in crores only, no doubt. Yeah. तो आप और मैम काम कैसे डिवाइड करते हो दिन भर में? मैं और नेहा काम डिवाइड ऐसा होता है कि ऑब्वियसली आई एम ए सर्जन, तो मैं सर्जरी करता हूँ मेनली, एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्क शी इज़ डूइंग, मीन्स ICU शी इज़ लुकिंग आफ्टर ICU, फाइनेंसेस शी इज़ लुकिंग इनटू द फाइनेंसेस. एंड मेरा काम बहुत सिंपल है. मैं OPD करता हूँ, मैं OT करता हूँ, पेशेंट ICU में शिफ्ट होता है, ICU में शी लुक्स आफ्टर दैट, एंड बाकी सब जो काम है वो मेजॉरिटी नेहा ही देखती है. राइट. हम लोग ये है कि राउंड दोनों साथ में लेते हैं, सो दैट जो भी पेशेंट का डिस्कशन होना है वो साथ में हो जाए हमारा डिस्कशन. या एंड दिस इज हाउ इट गोज. या शुरुआती भी देखा जाए तो बैक प्रॉब्लम से तो आधे जन डॉक्टर्स के पास तो सिर्फ बैक प्रॉब्लम ही लेके जाते हैं. no ये doubt. क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो आप? ये चेंज नहीं, बैक प्रॉब्लम धीरे धीरे डेफिनेटली बढ़ती ही जा रही है जी. बिकॉज ऑफ चेंजिंग सिनेरियो. Okay. अभी मोबाइल है जी. मोबाइल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नेक इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आने बहुत लगे ज़्यादा आ हैं, रहे हैं. बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, है ना. फिर बैक पेन काफ़ी ज़्यादा, लो बैक पेन काफ़ी कॉमन हो गया क्योंकि सिटिंग वर्क है मेजॉरिटी का, जी. सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, फिजिकल जी. वर्क उतना ज़्यादा रहा नहीं है अभी, बराबर. तो काफ़ी ज़्यादा बैक पेन आता है मेरे पास में, काफ़ी ज़्यादा बैक पेन आता है. उसमें से मेजॉरिटी बैक पेन जो होता है वो मैकेनिकल बैक पेन, मसल पेन, यही सब रहता है. बट काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास डिस्क प्रोलैप्स के भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं. तो बैक पेन कहाँ तक इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कहाँ आगे जाके और कब कितना बढ़ जाता है कि उसको इवेंचुअली सर्जरी लगती है, क्या होता है फिर प्रोग्रेशन? सी, व्हेनेवर यू हैव बैक पेन, तो सबसे पहले तो आई वुड से कि काउंटर दैट जाके वो मेडिसिन नहीं लेना है. एक बार आपने एटलीस्ट कंसल्ट किसी जनरल प्रैक्टिशनर से जाके कंसल्ट कर ही लेना चाहिए, एंड टेक मेडिसिन, टेक रेस्ट. मेजॉरिटी ऑफ द बैक पेन सबसाइड हो जाते हैं उसके बाद में. बट अगर बैक पेन आपका सबसाइड नहीं हो रहा है, रादर इट इज़ इंक्रीजिंग और इट इज़ परसिस्टेंट, or you are having symptoms like radicular pain, or you are having some weakness in the limb, bladder involvement is there, difficulty in passing urine. जी. These are all red flag signs. बराबर. So you should not ignore these symptoms, and you should go and consult the neurosurgeon. ये एक चीज़ हुई. दूसरी चीज़ ये होती है कि बैक पेन काफ़ी सारे पेशेंट्स कई बार बताते हैं कि नाइट में ज़्यादा होता है, मिड नाइट में बैक पेन होता है. सो मिड नाइट बैक पेन इज़ क्वाइट डेंजरस. So sometimes it could be a malignancy also. So you should not ignore these symptoms. If you are having fever with that, or there is severe spasm is there,
तो समटाइम्स इट कुड बी ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो. बराबर. सो यू शुड नॉट इग्नोर ऑल दिस सिम्टम्स. मेरा एक बहुत खुद फ्रेंड है सर, टीबी ऑफ स्पाइन हुआ है, आज व्हील चेयर पे आ गया सर वो. Oh God. जस्ट बिकॉज कि अरे कुछ Ignore नहीं it, होता, ignore देख it, लेंगे yeah, करके, yeah, सिर्फ yeah, उसी वजह से. सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, Yes. ये तो आजकल फ़ोन की वजह से तो बहुत बढ़ गया है. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. इसको कभी कभी सर्जरी भी लगती है सर, डेफिनेटली लगती है सर्जरी. तो क्या क्या करना चाहिए लोगों ने इसके ऊपर? इफ़ यू से कि प्रिकॉशंस क्या लेने जी. चाहिए, प्रिकॉशन लेने हैं तो सबसे पहले तो जो आपका मोबाइल है, हम्म. वो मोबाइल को या तो आप ब्लूटूथ लगा लो, है ना, या फिर उसको ऊपर अपने एट द लेवल ऑफ फेस you should keep the mobile, but it is practically sometimes it is not possible. Not possible. Majority of the public जो है वो गर्दन को नीचे, तो this is one of the major cause for back pain, cervical pain. So ये जो मैंने प्रिकॉशन बताया वो. सेकेंड चीज़, जो पिलो होना चाहिए जी. वो काफ़ी पतला होना चाहिए जी. मोटा पिलो नहीं होना नहीं होना चाहिए. सो दैट जब आप सोते हैं तो आपका जो हेड लेवल है वो बॉडी के साथ में मैच करे, जब आप टर्न कर रहे हैं तो भी वो बॉडी के साथ में आपके सेम पैरेलल रहे. बराबर. तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचने के लिए. देन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट. बैक एक्सरसाइजेस, नेक एक्सरसाइजेस, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टू कीप योर मसल्स टाइट एंड. बहुत लोग सर सियाटिका को सेल्फ डायग्नोस करके कुछ तो भी करते रहते हैं, इसको थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए. सियाटिका जो अभी आपने डिस्कस किया है ना, कि जब स्पाइन में जो डिस्क होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क जिसको बोलते हैं, वो जब पीछे सरक जाता है और वो नर्व को कंप्रेस करने लगता है एंड पेशेंट स्टार्ट हैविंग रेडिकुलर पेन. जी. पैर में करंट जैसा फील होना, थोड़ा सा नमनेस, सुन्न लगने लगना, या फिर झुंझुनी आने लगना, इसको अपन सियाटिका बोलते हैं. जब भी सियाटिका हो रहा है तो सियाटिका कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. एब्सोल्युटली यू शुड नॉट इग्नोर इट. इमीडिएटली आपने कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोसर्जन से जाके, और अगर सियाटिका है या रेगुलर पेन है तो आपने एमआरआई कराना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. बराबर. बिकॉज 100% आपको वहाँ पे कंप्रेशन मिलेगा ही. ओनली थिंग इज एमआरआई करने के बाद ये चेक करना है कि कंप्रेशन कितना है. अगर कंप्रेशन थोड़ा है, माइल्ड है, तो यू कैन कीप इट लाइक विथ मेडिकेशन एंड अवॉइडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग, वेट लिफ्टिंग, यू कैन मैनेज द थिंग्स. बराबर. बट इफ इट इज मॉडरेट और सीवियर, बराबर, देन यू नीड अ सर्जरी, बिकॉज otherwise you will end up with weakness in the limb, difficulty in walking, and in severe cases you will end up with bladder bowel involvement, latrine bathroom में भी issue आ सकता है. So early pickup is very important. अब थोड़ा सा ना सर भी इसको चेंज करते हैं. Yeah. आप मॉडल लेके बताइए ना कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं. Yeah. Yes. So yeah. हाँ ऐसे. Yeah. So this is a brain model. और थोड़ा सा ऊपर. हाँ. Okay. हाँ. So this is a brain model. जी. ब्रेन के मेजर अपने जो पार्ट्स होते हैं, ये जो एरिया होता है इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं. फ्रंटल लोब इज़ द बिगेस्ट पार्ट. ये अपना जो पार्ट है वो जहाँ से यू आर थिंकिंग एंड योर सोशल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन दिस, है ना. तो ये फ्रंटल पार्ट होता है. देन इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको पैरेटल पार्ट बोला जाता है, जो सेंट्रल वेन के पीछे होता है. ठीक है. पैरेटल पार्ट में अपना सेंसरी कॉर्टेक्स होता है ना. उसके बाद में होता है आपका ऑक्सीपिटल पार्ट. दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल पार्ट. ऑक्सीपिटल पार्ट में मेनली जो होता है अपना विजन, एज यू आर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट यू नो एवरीथिंग. या तो विजन लाइज हियर. देन कम्स द टेम्पोरल पार्ट. दिस इज द टेम्पोरल पार्ट, है ना. सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन योर मेमोरी, इन योर हिप्पोकैम्पस अंदर में होता है. दैट मेमोरी डिपेंड करता है, सोशल बिहेवियर डिपेंड करता है आपका. ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है यहाँ पर होता है अपना स्पीच एरिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रोकास एंड वर्निकेस एरिया होता है. तो लेफ्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू राइट इन टर्म्स ऑफ स्पीच, कॉग्निशन एंड एवरीथिंग. वॉट एवर वी आर इंटरेक्टिंग इट इज़ थ्रू द आवर लेफ्ट ब्रेन. बराबर. सो दिस पर्टिकुलरली ये रिलीवेंट कब रहता है जब हमारे पेशेंट स्ट्रोक के आते हैं. मैक्सिमम टाइम क्या होता है जब पेशेंट लेफ्ट साइड का स्ट्रोक लेके आता है तो पेशेंट जो होता है वो अफिजिक हो जाता है, राइट साइड हेमिप्लेजिया होता है. सो पेशेंट को जब हम बताते हैं कि लेफ्ट साइड का स्ट्रोक हुआ है, मेजर स्ट्रोक है, तो पेशेंट मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट एनी मोर, और ही मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. बराबर. सो पेशेंट, द रिलेटिव्स, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट वेरी इजीली. सो दे ऑलवेज आस्क कि सर क्या कर सकते हैं. अगर विंडो पीरियड में आ रहा है देन इट्स फाइन. अदरवाइज लेफ्ट साइड का स्ट्रोक है, मेजर स्ट्रोक है, MCA गया है आपका पूरा. So majority of the patients, they are bedridden, they are wheelchair bound, they are not able to understand the things. बराबर. Okay, so this is the part. Then comes your
द सेकेंड ब्रेन और द स्मॉलर ब्रेन, छोटा ब्रेन जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम. दिस इज द सेरिबेलम. सेरिबेलम इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बैलेंस, योर वॉकिंग, बराबर. your fine work. If there is something wrong with the cerebellum, your fine work will be disturbed. बराबर. You may not be able to write properly, you may not be able to walk properly, your balance will get disturbed. Then come the most important part of the brain, that is called as the brainstem. This is the brainstem. बराबर. This is the midbrain, then pons and the medulla. बराबर. Here all our cranial nerves are lying here, है ना, right from first to all 12 cranial 12 cranial nerves, बराबर. So all the cranial nerves are lying here. So this is a very important part, and all these cranial nerves are there. बराबर. तो Yeah. थैंक यू सो मच. Yeah. अब स्पाइन का भी बता दीजिए सर थोड़ा सा. So this is a model of lumbar spine. जी. Lumbar spine की 5 spine vertebrae होती है, 1 2 3 4 5. This is sacrum. बराबर. This is coccyx. Okay. वर्टिबल बॉडी के बीच में डिस्क होती है, Gaps. जो अभी जी. जो गैप्स होती है वो में डिस्क होती है. जी. ठीक है. डिस्क के पीछे में अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है जहाँ से रूट्स निकलते हैं. बराबर. एज यू कैन से हियर, ये येलो पार्ट है, दीज आर रूट्स. और उसके पीछे में होती है अपनी स्पाइनस प्रोसेस. बराबर. स्पाइनस प्रोसेस होती है, ये फैसेट जॉइंट बोलते हैं, फैसेट जॉइंट होता है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, और दिस आर ऑल पेडिकल्स. बराबर. है ना. सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ आवर लंबर स्पाइन. सियाटिका में क्या होता है? सियाटिका में जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में L4-5, L5-S1 ये जो डिस्क होता है, ये क्योंकि इट्स लाइक ए स्पॉन्ज, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत प्रोलॉन्ग प्रेशर पड़ेगा या फिर सडन प्रेशर पड़ेगा, तो जो आउटर पार्ट होता है उसका वो क्रैक हो जाता है, एंड जो इनर पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोला जाता है, इट गोज आउट. एंड मेजॉरिटी जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो पोस्टीरियर साइड में जाता है, बिकॉज जो एनुलस होता है, जो आउटर पार्ट होता है, वो पोस्टीरियर में ही ज़्यादा वीक होता है. तो वो पीछे जाके पॉपअप होता है, एंड इट पिंचेस द नर्व रूट, इट कंप्रेसेस द नर्व रूट, एंड बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द नर्व पेशेंट स्टार्ट फीलिंग पेन होता है. बराबर. एंड इफ़ यू इग्नोर इट बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग कंप्रेशन और बिकॉज ऑफ सीवियर कंप्रेशन, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, फंक्शंस चले जाएंगे, फंक्शंस चले जाएंगे. बराबर. या तो दिस, और इनके फंक्शंस यही होते हैं, आपके दोनों पैरों का मूवमेंट्स करना, यूरिनरी, है ना, बराबर. स्टूल पास करना, दिस आर ऑल द फंक्शंस. डिस्क बल्ज सर, वो भी बता दो ना एक बार आप. या सो ये जो रेड पार्ट दिख रहा है, जी. है ना, ये एक थोड़ा सा ऐसे. हाँ. ओके. हाँ. तो ये जो रेड पार्ट दिख रहा है, जी. ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो डिस्क है वो बल्ज हो गई है. जी. बल्ज होके वो बाहर निकल गई है. बराबर. है ना, और बल्ज होने की वजह से ही ये डिस्क जो रूट रहती है जी. वो कंप्रेस होती है. बराबर. तो दिस इज कॉल्ड डिस्क बल्ज. उसमें अलग अलग रहते हैं. डिस्क बल्ज यानी सिर्फ थोड़ा सा डिस्क बल्ज होना, फिर डिस्क प्रोट्रूजन यानी ज़्यादा डिस्क बाहर निकलना, डिस्क एक्सट्रूजन यानी डिस्क बाहर निकल के कैनाल में ही चली गई हो. बराबर. और समटाइम्स इट हर्निएट्स इंफीरियरली और सुपीरियरली. ट्रू. तो ये जब भी होता है इनकी सर्जरी ही की जाती है आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्सट्रूजन, बराबर. माइग्रेशन, यू नीड सर्जरी. डिस्क बल्ज में समटाइम यू कीप द पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन बिकॉज द बल्ज कैन बी मैनेज्ड कंजर्वेटिवली. बराबर. चलो, थैंक यू सो मच. आई होप लोगों को समझेगा इसके ऊपर कैसा था. ब्रेन सर्जरी जब कोई भी सुनता है वो एकदम से डर जाते हैं कि अरे यार क्या हो रहा है ऐसे. yes. तो इसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई कीजिए. बहुत लोगों को लगता है ब्रेन सर्जरी मतलब अभी सब खत्म हो गया, बट शायद कभी कभी जब आप जल्दी चले जाओ, समय में चले जाओ, तो आपको प्रोग्नोसिस शायद बहुत अच्छा मिलता है. yes, तो इसके बारे में थोड़ा सा सर लोगों का डर हटाइए आप. yes. टाइम इज ब्रेन, नो डाउट. बराबर. एज आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे ब्रेन का, उतना आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें. तो ब्रेन सर्जरी अलग अलग टाइप की होती है. 100%. ब्रेन ट्रॉमा के लिए भी ब्रेन सर्जरी होती है, कोल्ड केसेस लाइक ट्यूमर्स के लिए भी सर्जरी होती है, वैस्कुलर के लिए भी लाइक एन्यूरिज्म्स, एवी मालफॉर्मेशन, और समटाइम्स यू हैव फॉर न्यूरल्जियास लाइक ट्राइजमा न्यूरल्जिया. तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन सर्जरीज आर देयर. एंड आई वुड से कि ब्रेन सर्जरी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है. ब्रेन सर्जरीज नाउ डेज बहुत ज़्यादा सेफ हो चुकी है, क्योंकि वी हैव वेरी गुड MRIs नाउ. डायग्नोस्टिक टूल्स इतने इम्प्रूव हो चुके हैं, देन सर्जिकल टूल्स भी बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं. वी हैव माइक्रोस्कोप्स, वी हैव एंडोस्कोप्स नाउ, है ना, और सर्जिकल स्किल बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन. तो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है. तो ब्रेन सर्जरी से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है.
काफ़ी सेफ़ हैं, और ब्रेन सर्जरी हो जाएगी तो पेशेंट उसके बाद चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, ये एकदम गलत बातें हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि ब्रेन में क्या पैथोलॉजी है, ब्रेन में क्या डैमेज हुआ है ना। ऐसा नहीं कि हर एक ब्रेन सर्जरी के बाद ही ऐसा होने वाला है। ट्रू, बराबर, नहीं ऐसा Yeah. नहीं होगा। या डेफिनेटली। थोड़ा मिथ बस्टिंग भी करते हैं ना सर यस साथ में, यस यस कि बहुत लोगों को लगता है कि ब्रेन सर्जरी मतलब हमारे जिनका भी हो रहा है या मेरा खुद का हो रहा है तो मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहूँगा। या नहीं, ये बिल्कुल एकदम सरासर गलत है जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पहले जैसे इंसान नहीं रहोगे। आई वुड से कि मेजॉरिटी केसेस में आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बट कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे जो ट्यूमर होता है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड होता है जिसने ऑलरेडी ब्रेन का फंक्शन डैमेज कर चुका है। ऐसे केसेस में समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू उसको पहले जैसा करना। बट मेजॉरिटी ब्रेन ट्यूमर्स आर बेनाइन ट्यूमर्स, और ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे वो इजीली एक्साइजेबल होते हैं, और उसके बाद में पेशेंट को जनरली कोई इशू नहीं आता है ना। तो इट्स टोटली मिथ कि ब्रेन सर्जरी हो गई, हर एक ब्रेन सर्जरी के बाद में ऐसा ही होने वाला है। इट्स अ टोटल मिथ। पर इलेक्टिव ब्रेन सर्जरी में तो आई थिंक पहले जैसे फंक्शन तो आ ही जाता होगा। इलेक्टिव ब्रेन सर्जरी में पहले जैसा फंक्शन आ जाता है, बट मैंने जैसा बताया मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पहले जैसा फंक्शनिंग आ जाता है, पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हो जाता है, वॉक करने लग जाता है। बट जैसे मैंने बताया कि कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर है जो कि मोटर कॉर्टेक्स पे ही है, वो तो इन्वॉल्व हो गया ना एरिया, हाँ, खत्म ही वो हो तो गया। इन्वॉल्व हो गया है। बराबर। सो ऐसे केसेस में यू कैन नॉट हेल्प दैट इन सच केसेस, true. है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो इट इज इंडिविजुअलाइज्ड। बराबर। या बट आई वुड से कि ब्रेन सर्जरी से बिल्कुल भी डरने जैसा बिल्कुल नहीं है, और फंक्शन रिगेन हो जाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो आज नॉर्मली काम कर रहे हैं, ऐसा है। तो डिपेंड करता है। बराबर। थर्ड मिथ के बारे में, सेकंड मिथ के बारे में बात करते हैं कि स्पाइन सर्जरी से आपको पैरालिसिस हो जाता है। ये भी लोगों को लगता ये तो सबसे बड़ा मिथ है, हाँ, है ना। आई वुड से कि 99% यही बहुत करेंगे कि सर सर्जरी के तो रिजल्ट अच्छे नहीं हैं, सर सर्जरी के बाद तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि अगर आप सर्जरी के बाद चल ही नहीं पाओगे तो फिर सर्जरी करूँगा क्यों, है ना। तो इट्स अ वेरी बिग मिथ। आई वुड से कि अभी तो ऐसा है कि सर्जरी के बाद आप ज़्यादा अच्छे से चल पाओगे, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। अभी जो स्थिति है कि आप चल ही नहीं पा रहे हो, सीवियर पेन है आपको, सर्जरी के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो पहले मे बी इट वॉज few years back, like some 20-30 years back, because माइक्रोस्कोप्स अच्छे नहीं थे, एंडोस्कोप्स नहीं थे उस समय अच्छे, डायग्नोस्टिक टूल्स भी अच्छा नहीं था, एमआरआई भी उतने एडवांस नहीं थे। तो एट दैट टाइम मे बी इट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम मिस डायग्नोसिस एंड, है ना। बट अभी तो इतने अच्छे अच्छे इवोल्यूशन हो चुका है डायग्नोस्टिक टूल में, सर्जिकल टूल्स में, स्किल्स में, एंड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट अपना जो नॉलेज है, मेडिकल नॉलेज है, उसका भी इवोल्यूशन हुआ है। तो अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने सर्जरी की और पेशेंट लैंड अप। मैंने तो आई समटाइम्स आई हैव टू से कि आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू दैट यू विल नॉट बी पैरालाइज्ड। बराबर। या सो इट्स अ टोटल मिथ। बराबर। एक और सब लोगों को लगता है कि हेडेक्स कभी कभी सीरियस नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेडेक्स, मेजॉरिटी ऑफ द हेडेक्स सीरियस नहीं होते, दैट इज ट्रू। बट हर एक हेडेक सीरियस नहीं होता, ये गलत है, 100%, है ना। कुछ कुछ हेडेक सीवियर हो सकता है और सीरियस डिसीज का इंडिकेशन हो सकता है। पर्टिकुलरली हेडेक जो कि रिसेंट ऑनसेट हुआ है, समटाइम जैसे अपनी बात हुई थी थंडर क्लैप हेडेक की, सडन सीवियर हेडेक, इट कैन नॉट बी नॉर्मल। बराबर। या इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ SH, है ना। समटाइम हेडेक ऐसे होते हैं जिसमें वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को रिपीटेडली वॉमिटिंग होती है, थोड़ा सा इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग होता है। तो ये सब हेडेक भी सिंपल हेडेक नहीं होते हैं, ये सब इट इंडिकेट्स सम सीरियस पैथोलॉजीज इनसाइड योर ब्रेन। सो दिस आर, इफ यू हैव हेडेक एसोसिएटेड विद फीवर, तो इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस। एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट मैं कुछ पेशेंट्स को जब एग्जामिन करते हैं ना, तो आई हैव टू टेल देम कि आपकी आंख इज प्रोन फॉर समथिंग कॉल्ड एज एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। एंगल क्लोजर का अटैक आता है कभी कभी, सडन राइज इन आईओपी होता है। तो उनको भी यही जरूरत है कि एक अलग आपको समझ में आएगा नॉर्मल हेडेक नहीं है और आपको वॉमिटिंग आएगी। yes. तो भागते दौड़ते हुए मेरे पास आ जाना, बिकॉज योर आइज आर प्रोन टू दिस, देन वी विल डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन। उनके पास हम हमेशा गोली रख देते हैं, डायमॉक्स, कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट एक डायमॉक्स खा के आपका आईओपी लोअर हो जाएगा, बाकी हम बाद में इंटरवेंशन कर देंगे। न्यूरोलॉजिस्ट में भी यही होता है बहुत बार। ट्रू। मुझे सर इनफैक्ट बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है, कुछ हेडेक्स एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हम लोग जो डायग्नोज करते हैं
दे टर्न आउट टू बी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, और हम कहते हैं नहीं भैया ये प्रॉब्लम ब्रेन से आ रहा Brain है से आ पर रहा है। योर आई इज गेटिंग अफेक्टेड, तो तुरंत Yes. भागिए Yes, टू yes, yes, अ yes, न्यूरोसर्जन। Yes, yes, yes. बराबर, yes, yeah. इंक्रीज्ड आईसीपी यूजुअली ICP, yes. आंखों में ही दिखता है Parenteral हमको। hypertension. बराबर। Parenteral, yeah. आप सर्जरी में सर खुद को कैसे प्रेप करते हो एक केस के पहले? अब तो काफ़ी टाइम हो गया है समीर एक्चुअली में, तो अब उतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यस, इनिशियल डेज में जब मैं सर्जरी करता था, देन आई स्टार्टेड डूइंग इंडिपेंडेंटली सर्जरीज। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली कोई भी सर्जरी जब कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बिफोर सर्जरी आई यूज़ टू इमेजिन द स्टेप्स कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कौन सी स्टेप्स करूँगा, और कुछ इशू आता है पर्टिकुलर केस को लेके तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा। ये एवरीथिंग आई यूज़ टू इमेजिन इनसाइड, एंड मेरे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे उसके बाद में जी। ऐसा। तो इन दैट वे आई यूज़ टू प्रिपेयर माई सेल्फ और अभी इनिशियल डेज। और अभी नाउ इट्स लाइक फॉर रूटीन केसेस आई हार्डली, इट्स ऑल इन द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। बराबर। मैं ये खुद उस दिन हमारे पास पहले डॉक्टर प्राची महाजन आए थे, एंड वी हैड अ फ्यू मोर सर्जन्स, तो मैं उनसे वही डिस्कस कर रहा था। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी सर्जरी मोस्टली स्पाइनल लेवल पे ही होती है। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी लगता है ज़्यादा दिमाग लगाओ तो कभी कभी कुछ तो गड़बड़ होता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। जैसा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो। इफ़ यू वांट टू गिव रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स, फॉलो द प्रोटोकॉल्स, दैट्स इट। फियर मैनेजमेंट आपने खुद को कैसे सिखाया? कभी कभी होता है ना कि आप एक कर रहे हो, ये चीज़ हो गया है, होता है उसको मैनेज करके फिर बैक ऑन ट्रैक लाना, वो आपने खुद को कैसे ट्रेन किया? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विथ एक्सपीरियंस फियर मैनेजमेंट धीरे धीरे होने लगा है, हो ही जाता है वो। तो फियर मैनेज करने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है ड्यूरिंग इंट्रो, अगर कुछ कैटास्ट्रोफ होता है तो अपने आप को सबसे पहले तो काम रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अगर अपने आप को काम नहीं रखेंगे तो यू विल एंड अप विथ समथिंग मोर डेंजरस। सो मैंने धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को काम रखना सीखा जी, है ना, पेशेंस रखना सीखा, हाउ टू हैंडल द ब्लीडिंग वेन एवर यू हैव सम मेजर ब्लीडिंग while removing the tumor or while doing some aneurysm. Sometimes when you start clip, the aneurysm get ruptured. हाँ, आपको फील्ड ऑफ व्यू खत्म हो गया आपका। There is no field of vision, there is only blood. बराबर। So how to handle that situation? सबसे पहले तो keep your calm, have patience, have faith in you कि you will manage this thing. Then few things are there. Then all these things gradually it has evolved now. So now remain most of the time I remain calm during the surgery. हर डॉक्टर का ना सर एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होता है। Yeah. आपका अलग हो, शायद दो न्यूरोसर्जन का भी अपना अपना अलग अलग डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होगा, रहता है डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। तो व्हेन टू ऑपरेट एंड व्हेन टू वेट, ये आपने खुद का फ्रेमवर्क कैसे बनाया? एक्सपीरियंस ही आता है सर मेरी। अच्छा, व्हेन टू ऑपरेट, व्हेन नॉट टू ऑपरेट। आपकी कुछ एसओपीज है क्या ऐसे कुछ कि ये है तो मैं रुकूंगा, ये है तो मैं करूंगा? डेफिनेटली है मेरे। वो डिपेंड करता है पैथोलॉजी, केस टू केस डिपेंड करता है। अगर मेरा ट्रॉमा का पेशेंट है, पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल पेशेंट को सबड्यूरल हेमाटोमा है, पेशेंट कॉन्शियस है, कमांड्स फॉलो कर रहा है, सबड्यूरल हेमाटोमा बहुत बड़ा नहीं है जी, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑपरेट, जस्ट ऑब्जर्व करूँगा उसको मैं। इन सेम पेशेंट अगर थोड़ा डिटोरेट होता है बट स्कैन में मुझे कोई चेंज नहीं दिख रहा है, मिड लाइन शिफ्ट बढ़ नहीं रहा है, तो अगेन आई कंजर्वेटिव रखूँगा। बट डेफिनेटली अगर मिड लाइन शिफ्ट बढ़ रहा है देन आई विल टेक द पेशेंट इन ओटी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर केस कि कौन से पेशेंट को ऑपरेट करना है, कौन से पेशेंट को नहीं ऑपरेट करना है ना। तो पेशेंट को रेज्ड आईसीटी के सिम्टम्स है नहीं, समटाइम्स पेशेंट दे हैव ट्यूमर, ओल्ड पेशेंट्स हैविंग ट्यूमर बट देयर इज नो साइन सिम्टम्स, नो हेडेक, नो सीजर्स, no raised ICT, then why you want to operate such patient? Means you are not gaining. Observe karo, keep him under follow. There is no point operating such patient. If the tumor is asymptomatic, then why you want to operate? बराबर। Yeah. वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे करते हो? है कि नहीं आपका? पहली बात तो ये पूछूं मैं पहले। नहीं, मेरा है वर्क लाइफ बैलेंस। आई ट्राई बट मेरे बच्चों को लगता है नहीं है। करने का एक ही तरीका है समीर, यू हैव टू बी, आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है कि इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। एज यू एवरी ब्रांच उसमें एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ है, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग विथ योर ब्रांच, यू कैन गो अप टू द टॉप।
या बट बराबर यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि मैं इसकी ये लाइन क्रॉस नहीं करूँगा. बराबर. सो इन दिस वे आई मैनेज. आई डू नॉट क्रॉस दैट लाइन. तो आप और मैम दोनों साथ में ही आते हैं, साथ में जाते हैं, कैसा करते हैं? नहीं, साथ में आना, साथ में जाना इतना पॉसिबल नहीं रहता. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं जल्दी आता हूँ, वो थोड़ा लेट आती है बिकॉज ऑफ घर के जो काम जी. सब वो करके. जाने का हमारा मेनली साथ में होता है, बट जी. वी मेक अ पॉइंट कि हम राउंड साथ में ले, जी. ताकि जो भी डिस्कशन है पेशेंट जी. रिलेटेड वो उसी समय में हो जाए. बराबर. या तो इस तरीके से मैनेज होता है हमारा. मैं चाहता हूँ सर आप एक छोटा सा लोगों को समझाएं कि किसी भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या किसी भी चीज़ में हाउ इम्पोर्टेंट टाइम इज़, कि आप जितना लेट आते हो उतना ही आपका आउटकम प्रॉमिस नहीं होता है. डेफिनेटली. ये थोड़ा सा लोगों को इसकी सीरियसनेस बताइए सर. अपन एग्जांपल लेके हाँ, बात बिल्कुल. करते हैं. एग्जांपल फॉर एग्जांपल ब्रेन में बात करते जी. हैं. ब्रेन में स्ट्रोक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना. कोई पेशेंट को स्ट्रोक आया मतलब पैरालिसिस आया, लकवा आया पेशेंट को, है ना. तो स्ट्रोक में सबसे अच्छी बात क्या है, आप उसको कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं. अगर पेशेंट आपके पास में 4.5 घंटा, एक हमारा एक्सटेंडेड टाइम है, 4.5 घंटे में हमारे पास में आता है पेशेंट. कोई पेशेंट को वीकनेस आया है, फेशियल ड्रूलिंग हुआ है या फिर स्लरिंग हुआ है पेशेंट को, तो अगर पेशेंट 4.5 घंटे में हमारे पास में आता है तो वी कैन थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट, एंड उसका जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, जो उसको वीकनेस आई है, वो कम्प्लीटली जा सकती है, प्रोवाइडेड द पेशेंट शुड रीच द हॉस्पिटल विद इन अ स्टेबल टाइम पीरियड. सो उसके बाद आता है वी हैव अदर ऑप्शंस बट रिजल्ट्स आर नॉट गारंटीड. तो ये स्ट्रोक में हुआ. तो स्ट्रोक में विंडो पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम गोल्डन आवर्स बोलते हैं, है ना. हेड इंजरी में भी सिमिलरली गोल्डन आवर्स हैं. हेड इंजरी अगर पेशेंट को हो रही है, पेशेंट सीवियर हेड इंजरी है पेशेंट को, तो इमीडिएटली पेशेंट शुड बी ब्रॉट टू द हॉस्पिटल, और फास्टली उसका डायग्नोस्टिक हो जाना चाहिए और सर्जरी हो जाना चाहिए, बिकॉज एवरी सेकेंड द न्यूरॉन्स आर डाइंग, because edema is increasing, blood circulation is hampering, and millions of neurons they are dying per second. बराबर. So in neurology, in neurosurgery, time is brain. You cannot waste a second, I would say. बराबर. So in that way ये बहुत important चीज़ है. लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जितना समय बर्बाद होगा अपना पेशेंट का आउटकम उतना बर्बाद हो जाएगा, बेकार होता जाएगा. स्पाइन में अगर बात करें तो स्पाइन में भी सर्वाइकल स्पाइन या लंबर स्पाइन है. अगर पेशेंट को वीकनेस डेवलप हो चुका है हाथ में ऑलरेडी, तो उसने बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए. इमीडिएटली उसने कंसल्ट जाके न्यूरोसर्जन से करना चाहिए, डायग्नोस्टिक करके उसको इमीडिएटली रिवर्स करना चाहिए. अदरवाइज पेशेंट विल एंड अप विद परमानेंट डेफिसिट. ट्रू. या लोगों को ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी सेल्स बॉडी में रीजनरेट हो जाती है, या न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते हैं. नहीं होते हैं. देयर इज अ कॉन्सेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी इज देयर, बट दैट टेक्स लॉट ऑफ बहुत टाइम लगता है और वो 100% रिकवर नहीं आता है. एक आधा इंटरेस्टिंग केस बताइए सर. इंटरेस्टिंग केसेस तो बहुत सारे हैं, हैं. आपके साथ बहुत सालों तक ऐसे दिमाग में रहा है, होता है ना सर? है 2-3 केसेस तो है मेरे दिमाग में. डेफिनेटली. एक पेशेंट मेरे पास में आया था, आईजीएमसी से वो रेफर्ड हुआ था मेरे पास में. समहाउ उसको मेरा नाम किसी ने बताया. ही केम, ही वाज रादर ब्रॉट बाय रिलेटिव्स इन अनकॉन्शियस स्टेट, टोटली अनकॉन्शियस, रिस्पॉन्डिंग टू डीपीएस एक्सटेंसर, आई वुड से M2, जिस स्कोर में मोटर रिस्पॉन्स वाज M2. हिज पीपल वेयर फुल्ली डायलेटेड. Fully means fully dilated. So I examined the patient, then RMO, the duty doctor, he said कि सर pupil dilated है, कुछ है नहीं. तो I was doing surgery at that time. तो I thought कि ठीक है, उसको बोल दे कि मेडिकल चले जा, pupil dilated है, we cannot do anything. तो then Neha came. Neha said कि he is moving limbs. Though pupils are dilated, but he is moving limbs. I said कि how it is happening? Some maybe brainstem injury is there. Brainstem sometime it happens. So I thought कि I should come and see the patient. When I saw the patient, his pupil were like 5 mm by 5 mm or fully dilated. So I thought कि this is not normal. This some eye drops has been given to the patient. तो I asked the relatives कि eye drop डाला था क्या आपने कुछ? तो ये सेट कि ये सर उन्होंने वहाँ पे आई ड्रॉप डाला था. अच्छा, इसलिए डायलेटेड था. इसलिए डायलेटेड फार्माकोलॉजिकल डायलेटेशन था. आई थॉट कि यस नाउ, बिकॉज ऑन सीटी स्कैन आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस कि इसका इतना पीपल डायलेट होना चाहिए करके. बराबर. तो व्हेन आई सॉ द स्कैन एंड टुक द हिस्ट्री, देन आई गॉट टू नो कि यार ये तो फार्माकोलॉजिकल एट्रोपिन की वजह से ये जो आप डालते हैं उसकी वजह से हुआ है ये. वी इमीडिएटली टुक हिम इन OT
we decompress the patient, and now he is coming in follow up. His GCS is 15/15. अरे क्या बात है, Yeah, बहुत बढ़िया, yeah. क्या बात So this case I always remember, because that was, if I would have taken that as a pupil dilated, so he would have succumbed, because he was in M2 Wow. at that stage. बराबर. That one case I always remember. Another case was a 5-year boy. He was playing in a house, in front of his house, dashed by 4-wheeler. He was brought to me in unconscious state only. He was having huge brainstem, brain parenchymal bleed was there. So we initially managed the patient with conservative management, but he was not improving. So when we repeat the scan, there was increase in the size of the bleed, and we operated the patient. After some time, he recovered. He regained consciousness. He was following commands. In follow-up, he said कि I have neck pain. Whenever a child is saying I am having neck pain, so you should be very cautious. क्या सस्पेक्ट करते हैं आप तब? CV junction anomalies. अच्छा. Yeah, craniovertebral anomalies. These are quite common. So I took an X-ray. Then I thought कि यार इसका C1 C2 dislocated लग रहा है. So I did a MRI, CT. There was severe dislocation. Normally जो होता है C1 C2 का जो distance होता है, that is 3 to 5 mm. उसका था around 10 mm. बराबर. So again we counseled the patient, and he was having difficulty in walking because of that. So again we counseled the parents. We explained the things कि क्या issue है ये. बराबर. And we operated that C1 C2 in a 5-year-old child. 5-year-old child is a very, it's a unusual, not a very routine case. We routinely operate in adults for CV लोगों को C2. समझना चाहिए 5 साल के बच्चे को एनेस्थीसिया देना इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. That too in a case of CV junction anomaly. True. That is a case of CV junction. Otherwise, sudden extension may end up with quadriparesis also. बराबर. Yeah. So that one case I remember. We have lot of cases actually. बराबर. स्कल बेस्ड सर्जरीज काफ़ी चैलेंजिंग मानी जाती है सर. Yeah. यू आर वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर डूइंग स्कल बेस्ड सर्जरीज. Yes. व्हाई आर दे चैलेंजिंग, और इनमें से क्या क्या चीज़ें ट्रीट होती है? स्कल बेस्ड चैलेंजिंग इसलिए होती है क्योंकि एक तो जितने भी अपनी वैस्कुलेचर है, ICA है, जितनी भी ब्लड वेसल्स है, वो स्कल बेस से राइज होती है. जी. देन ऑल आवर क्रेनियल नर्व्स दे आर लाइंग देयर, बराबर. है ना, सब चीज़ें वहीं पे होती है. तो इसलिए स्कल बेस्ड सर्जरी चैलेंजिंग होती है. और उसमें कुछ यानी जो पर्टिकुलरली जो मिड लाइन स्ट्रक्चर्स वाले ट्यूमर्स हैं, लाइक फॉर पिट्यूटरी एडिनोमास, लाइक मेनिंजियोमास, सम मिड लाइन मेनिंजियोमास, देन दिस थिंग्स कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल. थोड़ा लेटरल स्कल बेस में इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली एक्सरसाइज करना कई बार डिफ़िकल्ट होता है. बट जनरली जो मिड लाइन में है, पिट्यूटरी फोसा में है या फिर पिट्यूटरी फोसा के आगे पीछे में है, दिस स्कल बेस वी कैन ऑपरेट एंडोस्कोपिकली. बराबर. कितना बड़ा इंसिजन लेते हैं सर उसका? पिट्यूटरी का यानी स्कल बेस का वी आर डूइंग मेनली थ्रू एंडोस्कोप ओनली. सो देर इज नो एक्सटर्नल मार्क एज सच. वी आर एंटरिंग थ्रू द नेचुरल कॉरिडोर्स. अच्छा है. अभी डॉक्टर्स के अगेंस्ट सर आजकल हर कॉन्फ्रेंस में बात की जाती है कि कंसिडर एवरी पेशेंट एज अ पोटेंशियल लिटिगेंट. यही सिखाया जाता है. आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आपके इसमें बहुत बार आउटकम्स आर नॉट फेवरेबल. आप ट्राई पूरा करते हैं, हाँ होता है कभी कभी. तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं सर? मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था समय कि मैं जो चीज़ पे फोकस करता हूँ वो होती है काउंसलिंग. आई मेक इट अ पॉइंट एवरी डे. हम राउंड लेते हैं. राउंड लेने के बाद में वी कॉल ईच रिलेटिव्स एंड वी काउंसिल देम वेरी वेल. देन वी टुक अ साइन. तो इन दैट वे वी मैनेज. सो एज आई सेड अर्लियर कि अभी मुझे 10 साल हो गया है. वी नेवर फेस सच इशू. All these issues, when it arises when you are not counseling the patient's relative well. You have to tell everything. You have to tell everything before surgery, after surgery. If you are managing conservatively also, then you have to inform them that these things can happen, these things can go wrong. This is the treatment, this is the thing. And ultimately we say, if you are not happy, we are not happy with the treatment. If you are not means like not happy with the patient progress, you are free to take your patient anywhere you want. We are not forcing you to keep your patient here. So in this way we manage such patients. मुझे एक केस याद है सर, सो सॉरी, कि OPD में एक काइंड ऑफ अ वेल टू नोन आए थे. उनको हम डायलेट कर रहे थे एंड सडनली उनको TIA हुआ. एंड तब अलेक्सिस था, मैक्स नहीं था. एंड तो मैंने उनको बोला भाई तुरंत
लेके जाओ। जाते जाते मैंने बस सबलिंगुअलिक इकोस्प्रिन दे दिया। रख दिया था। दे रीच देयर इन 5 मिनट्स, वो स्टेबल हो गए। वहाँ के डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपने इनको इकोस्प्रिन दी क्या? हम्म, मैं बोला हाँ। ये लाइक आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर समीर ना। बोला हाँ। उन्होंने जो डाटा सर मेरे को, जो डाटा मेरे को हम्म, कि तुमने दिया क्यों। हम्म, आई अंडरस्टैंड यू फॉलोड प्रोटोकॉल, पर ये आपका काम ही नहीं है। ये कुछ हो जाता है तो आपको सू कर देता हो। तो आई अंडरस्टैंड आपने गुड फेथ में किया है, पर मत किया करो। ही वॉज टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि मत करो भाई, जो आपका काम नहीं है मत करो। तो मैं उस दिन घर जाके वही घर पे बात कर रहा था कि कहाँ आके खड़े हो गए यार अपन की, व्हाट इज हैपनिंग। नहीं अभी टुडेज सिनेरियो इज डिफरेंट। बहुत खराब। तो मैं तो सर प्राइवेट प्रैक्टिस में व्हेन आई थिंक कि दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड ना, मैं तो Yeah. मैं इंस्टीट्यूट भेज देता हूँ कि हाँ ये नहीं, डेफिनेटली नहीं चाहिए मेरे को। नहीं चाहिए। हाँ। इवन आई डू द सेम थिंग। बराबर। इफ आई थिंक कि यार ये बहुत अननेसेसरी हेडेक है तो इट बेटर टू बराबर। गो भाई, रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम। राइट। एक छोटा सा रैपिड फायर, फिर मैं आपको Yes. फ्री कर देता हूँ। यस यस कोई इशू। बेस्ट एडवाइस आपको मेडिसिन में किसी ने दिया होगा तो? बेस्ट एडवाइस यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मेंटर्स, डॉक्टर्स। मेंटर्स डॉक्टर्स। राइट। मैं जब जनरल सर्जरी कर रहा था, माई एसोसिएट प्रोफेसर शी वॉज डॉक्टर अर्चना वॉज देयर जी। इन अहमदाबाद। जी। शी सेड कि it's okay to be a good doctor, but always be a good human being. बराबर। Yeah. बहुत सही So है। that was the advice I have in my heart. और वर्स एडवाइस जो आपको मिला है, जो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर? मुझे सबसे जो वर्स्ट एडवाइस मिली कि डोंट स्टार्ट योर हॉस्पिटल, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर, जिसे मैंने हरदम इग्नोर किया है। तो उसी में मज़ा आता है सर। एग्जैक्टली। मज़ा उसी में आता है। नहीं तो व्हाट यू विल डू? हाँ। 10 से 5 काम कर क्या करोगे? एग्जैक्टली। और ग्रोथ नहीं है सर, मेरा बेसिक ग्रोथ नहीं है। Growth नहीं है। बराबर। एक कोई पर्टिकुलर सर्जरी जो आप आज भी नहीं भूलते हो? पर्टिकुलर सर्जरी जो मैंने बताया, एक तो जो बच्चे का जो मैंने जी। बताया वो सर्जरी मैं कभी भूल नहीं पाता। और उसके बाद में मैंने काफ़ी साल पहले एक हाइड्रेटेड सिस्ट आई ऑपरेटेड, दैट वाज अ कैल्सिफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट, दैट वाज द लार्जेस्ट सिस्ट टिल डेट। आई हैव पब्लिश दैट पेपर आल्सो इंटरनेशनल अच्छा, जर्नल। कितना बड़ा था सर? इट वाज समवेयर अराउंड 15 by 10 वाह, सेंटीमीटर बाप रे। समवेयर। या इट्स लाइक अ डायनासोर का जो एग होता है, दिस वाज द साइज। क्या बात है। या पेशेंट्स को एक चीज़ पता होनी चाहिए आपके पास आने से पहले, वो क्या होगा? वो ये होनी चाहिए कि मुझे लगता है कि पेशेंट शुड बी अवेयर अबाउट द रिसेंट एडवांसेस, कि रिजल्ट्स नाउ दे आर गुड, एंड अगर सर्जरी एडवाइस होती भी है जी। देन वी शुड गो फॉर सर्जरी। तो ये चीज़ उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद में रिजल्ट्स अच्छे हैं। बराबर। तो दिस इज़ द थिंग आई शुड नो, एवरीबडी शुड नो कि न्यूरो सर्जरी या ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बराबर। या आपको अभी भी लगता है नागपुर में और हेल्थ केयर में क्या क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है? नॉट जस्ट न्यूरो सर्जरी, इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नागपुर में अभी जो नहीं हो रहा है, यू वांट टू से इन रिसेंट एडवांसेस, अभी जो नहीं हो रहा है वो है कि जैसे जो स्टेम सेल्स वगैरह है वो होना चाहिए, वो एक चीज़ मिसिंग है अपने पास में। यहाँ पे दूसरी जो मिसिंग है, अगर देखा जाए तो जिसे हम बोलते हैं साइबर नाइफ, गामा नाइफ, ये चीज़ें मिसिंग है अपने नागपुर में। देन सुपर स्पेशलिटी स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा है अपना जी। व्हाट इज़ मिसिंग इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट। जी। That is the thing which is missing. Means the patient usually come to us in a deteriorated condition, बराबर। not treated properly. So these are the things which are missing right now. जी। At grassroots level पे थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है बराबर। वो उतना प्रॉपर नहीं है अभी भी। बराबर। चलो, थैंक यू सो मच सर, मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू समीर, मुझे भी काफ़ी अच्छा And, लगा, आई एंजॉयड इट। मे बी लेटर ऑन आगे पीछे सर कभी हम एक एपिसोड सिर्फ मॉडल्स के ऊपर करते हैं श्योर। कि आप डिफरेंट लोब्स, उनके फंक्शंस, उनका क्या क्या पैथोलॉजी आती है, उसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, स्पाइन का भी वी कैन जस्ट डू एक बहुत अच्छा था उसके ऊपर, है ना? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू समीर, थैंक यू।